discussed about wet etching in the previous video. And one thing that is important as far as your etching is being concerned, that when we are moving towards nanoscale, your wet etching is no longer usable. The reason for this is your degree of anisotropy, which cannot control the features being etched. So to get rid of that, some of the things being proposed, and one of the things that being proposed is change in the method of etching. So instead of dipping it in solution or immersing it in solution, another kind of etching is being prominently used. That is called dry etching. And in dry etching, we have 3, 4 different types, like your RIE, then your high density plasma, etc. So in dry etching, plasma is involved. So before we go further, let's have some idea about what plasma actually is. When we use this term plasma, so what does it signify? So we can say that it is fully or partially ionized gas composed of equal number of positive and negative charges. But there is one catch, that your unionized molecules may be different, may have different number. So how you actually obtain plasma? So how to obtain plasma? That is important. So you are having an electric field and you have a substituent magnitude. Suppose you are having this chamber, inside this you are having a gas, and you are applying some electric field onto this. So under the effect of electric field, your gas molecules may break and becomes ionized. So this is the thing about plasma. So initially when we talk about plasma, it is initiated by free electrons. Free electrons that are released by negatively biased electrode. Negatively biased electrode. So you have some studies about this in your +2 and chemistry. But here we are just going through that what is plasma. So what we can see that when you are having free electrons, they gain some kinetic energy from the electric field which we are actually applying from the electric field. So I hope you get some idea about plasma. There are certain things which is important as far as your plasma is being concerned. What we can say then, we talk about plasma, your electron concentration is important. So your electron concentrations for dry etching are relatively low.
So when we want plasma for dry etching, then electron concentrations are relatively low, and their concentration varies from 10 raised to power 9 to 10 raised to power 12 centimeter per cube. The pressure which we are using is around 1 torr, and concentration of gas molecules which we are actually ionizing is around about 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7. Okay, so this is gas concentration, and this is your electron concentration, so don't mix it with it. So it is higher than that of your electron concentration. So whatever this is the concentration, so this need to be higher than your electron concentration. Electron concentration. So your average temperature is in the range of 50 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. So from this we get some idea that when we actually go for plasma assisted dry etching, then it is a low temperature process. So now we have some fair idea about your plasma. So what is plasma? Plasma is ionized form where you are having equal number of positive and negative charges and have a different number of ionized molecules. And how it is being generated? It is being generated using electric field applied to a gas. This causes gas to break and then it becomes ionized. तो इस तरीके से आप प्लाज्मा जनरेट कर सकते हैं. अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि जो एचिंग कर रहे हैं ड्राई एचिंग, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे हो रहा है वो, और उसमें हम प्लाज्मा का थोड़ा सा डायग्नोस्टिक्स भी करेंगे कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा. डायग्नोस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंड पॉइंट कंट्रोल, कि जब आपका खत्म हो गया है आपका प्रोसेस तो आप उसको एंड पॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, because now we are actually working for etching using plasma. So here this particular kind of etching is called plasma etching. So plasma etching is a process, इसको हम प्रोसेस कह सकते हैं, in which a solid film of matter is selectively removed by a chemical reaction with ground state or excited state neutral species. Excited state neutral species. ओके, प्लाज्मा एचिंग प्रोसेस है, इसमें आप सॉलिड फॉर्म जो होता है फिल्म का जिसको आप एच करना चाहते हैं उसको सेलेक्टिवली रिमूव करते हैं यूजिंग ए केमिकल रिएक्शन, और जो आप स्पीसीज यूज कर रहे हैं वो ग्राउंड स्टेट में होगी या एक्साइटेड स्टेट न्यूट्रल स्पीसीज होगी. तो जो प्लाज्मा एचिंग है उसको हम एनहेंस कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस टर्म नाउ पीई. इट कैन बी एनहेंस्ड, इसको हम एनहेंस कर सकते हैं बाय energetic ions generated energetic ions generated
in a gaseous discharge. ओके, तो आप जो आपका प्लाज्मा एचिंग है उसको आप एनहेंस भी कर सकते हैं, इससे कि आप जो एनर्जेटिक आयन यूज कर रहे हैं गैसेस डिस्चार्ज से उसको आप इनहेंस करेंगे, जनरेट करेंगे, उससे आप एनहेंस कर सकते हैं. नाउ कमिंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कसिंग अबाउट कि मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे कंप्लीट होता है एचिंग मैकेनिज्म. तो इसमें भी काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, मेनली 5 स्टेप्स हैं. तो जो आपकी स्टेप 1 होती है वो होती है जनरेशन ऑफ एचेंट स्पीसीज. स्टेप 1 इज जनरेशन ऑफ एचेंट स्पीसीज. ये क्या है कि जिससे आप एच करना चाहते हैं जिस पर्टिकुलर मटेरियल से, आयन से, उसको प्लाज्मा फॉर्म में आप जनरेट करते हैं. उसके बाद ये आपने कर दिया, जनरेशन कर दिया. अब आपकी जो सेकंड स्टेप रहती है वो क्या रहती है कि जो आपका रिएक्टेंट है इज देन ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन. बाय डिफ्यूजन थ्रू ए stagnant gas layer to the surface. और क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट है आपका जो आपने जनरेट किया प्लाज्मा के फॉर्म में, उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू. कहाँ करते हैं? सरफेस पे, कि जहाँ पे आपको जो आपका प्लाज्मा एचिंग है वो आपने करनी है. अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कि ये आपने सरफेस तक डिफ्यूज कर दिया, यू डिफ्यूज दिस, तो इट नीड टू बी एड्सॉर्ब्ड. सो नेक्स्ट स्टेप इज reactant is adsorbed on the surface. जो आपकी सरफेस है उसके ऊपर आप इसको एड्सॉर्ब कर देंगे. उसके बाद क्या होता है आपका फोर्थ, वो सरफेस के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया तो उसके बाद आपका नेक्स्ट होगा केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन, ठीक है. केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जो भी आप आयंस को लेके आते हैं वो क्या करेंगे, वॉलेटाइल कंपाउंड्स बनाएंगे आपके फॉर्म. वॉलेटाइल वॉलेटाइल क्या है कि अभी हैं फिर थोड़ी देर बाद नहीं होंगे, दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस दे गेट कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द सरफेस. अब ये सब कुछ हो गया आपका, तो जो लास्ट स्टेप क्या रहता है, अभी तक हमने कौन कौन से स्टेप देखे कि आपने जिससे भी एचिंग करनी है उस स्पीसीज का आपने प्लाज्मा जनरेट किया, then you transport that plasma onto the surface where you are actually going to have this thing that is being done through the diffusion. तो आपने थोड़ा टाइम रखा, उसमें वो रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो गया सरफेस में, फिर वो केमिकल रिएक्शन हुआ, उसने वोलेटाइल कंपाउंड्स बनाए. और लास्ट नॉट बट लास्ट स्टेप इन दिस इज कि जो कंपाउंड्स आपके कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड फ्रॉम द सरफेस. जो सरफेस पे कंपाउंड्स बने हैं वो डिसॉल्व मतलब वापस हटेंगे वहां से, एंड diffused into the bulk gas and pumped out
बाय द वैक्यूम सिस्टम। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक ही एचिंग चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाए। तो ये आपकी एक बेसिक एचिंग प्रोसेस होती है। अब जो आपने प्लाज्मा प्रोसेस एचिंग प्रोसेस करी, इसमें क्या है कि जो आपका प्लाज्मा है दैट इज एट लो टेम्परेचर। प्लाज्मा आपका लो टेम्परेचर के ऊपर आपने जनरेट किया है, और उसके लिए अब दो डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। वन इज योर फिजिकल मेथड, और जो दूसरा होता है वो होता है केमिकल मेथड। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड, उसमें आप स्पटर एचिंग करते हैं। तो इसके बारे में हम जब मेटलाइजेशन करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज स्पटरिंग एंड ऑल। और जो सेकंड वाला है वो प्योरली केमिकल है, प्योरली केमिकल है। जो फिजिकल में स्पटरिंग करते हैं, और जो सेकंड है वो प्योरली केमिकल है। तो जो आपकी फिजिकल एचिंग है उसमें क्या होता है कि आयंस को बम्बार्ड करते हैं आप। जैसे सपोज ये सरफेस है, उस पर आयंस को बम्बार्ड करते हैं हाई स्पीड के ऊपर, और स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयंस आते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। तो उस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन केमिकल एचिंग में करते हैं आप न्यूट्रल जो स्पीसीज हैं वो इंटरेक्ट करती हैं सरफेस के ऊपर और वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जो आपकी केमिकल और जो फिजिकल एचिंग है, इसमें दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा सा। क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, सो वी हैव डिस्कस नाउ योर केमिकल मेथड एंड फिजिकल मेथड। तो दोनों में थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि एचिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट थिकनेस, सो दैट एक्चुअली डिसाइड्स कि आप चॉइस क्या रखते हैं एचिंग के लिए। तो अगर हम केमिकल एचिंग की बात करें तो आई विल बी यूजिंग द टर्म CE here. CE, so it stands for your chemical etching। केमिकल एचिंग की अगर हम बात करें तो इसकी जो एडवांटेज है वो ये होती है कि जो हाई एच रेट होता है इसका, एक तो ये एडवांटेज है, और दूसरा गुड सेलेक्टिविटी। ये नहीं है कि आपका जो भी है उसको एच कर देगा, जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसको अच्छे से वो एच करता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके डिफरेंट मटेरियल्स हैं उसकी जो रेशियो है एच रेट्स की वो अलग होती है। रेशियो ऑफ एच रेट्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। ओके, और इसमें एक एडवांटेज ये होती है कि एक तो ये हाई एच रेट है, ये गुड सिलेक्टिविटी है, और एक एडवांटेज इसकी ये भी है कि ये लो आयन बम्बार्डमेंट करता है, डैमेज करता है। लो आयन बम्बार्डमेंट डैमेज। तो होता क्या है कि जब आप आयन बम्बार्ड कर रहे हैं एक सरफेस के ऊपर तो डैमेज हो जाता है। यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस इन आयन इम्प्लांटेशन। तो ये जो डैमेज है ये कम होती है, और जो आपका प्रोफाइल आता है वो आइसोट्रोपिक प्रोफाइल आता है। अगर हम बात करें फिजिकल की, फिजिकल एचिंग, उसमें जो प्रोफाइल आता है वो आता है एनाइसोट्रोपिक, एंड दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द previous class. What do you mean by isotropic and what do you mean by isotropic? तो इसमें प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं। अब देखो, यू हैव टू मेक सम कॉम्प्रोमाइज। तो इसके जो एचिंग रेट है दैट इज लो, सो इट इज हैविंग ए लो एच रेट। का जो एच रेट है वो कम होता है,
एंड इसकी जो सिलेक्टिविटी है वो भी कम है. And as you are doing the sputtering, so damage is more. Damage is on higher side. Damage आपकी higher side की तरफ होती है. तो इनका हम नॉर्मली जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही यूज करेंगे. So we normally go for combination of chemical etching and physical etching. So इसकी एडवांटेज ये रहती है कि हमें एनाइसोट्रोपिक प्रोफाइल मिलता है जो कि डिजायर्ड है. और इसका एडवांटेज ये भी होता है कि गुड सिलेक्टिविटी भी मिल जाती है. अगर हम इसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, गुड सिलेक्टिविटी मिल जाती है. और जो डैमेज है वो आपकी कम होती है, मॉडरेट डैमेज. जब आपने सेलेक्ट करने हैं दोनों में से कौन सा एचिंग आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केमिकल एचिंग की एडवांटेज क्या है, फिजिकल एचिंग की एडवांटेज क्या है, और जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो क्या एडवांटेजेस हैं. तो इसका जो एक एग्जाम्पल है वो है RIE. So that is actually nothing but a reactive ion etching. That is a reactive ion etching. ये एडवांटेज है. इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल मेथड यूज करते हैं हम. किसके लिए? टू असिस्ट केमिकल एचिंग. इसलिए कि क्या होता है कि एक्चुअली हम फिजिकली आयंस जनरेट करते हैं टू पार्टिसिपेट इन केमिकल एचिंग. मतलब आयंस आप अलग तरीके से जनरेट करते हैं, आयंस आप जनरेट करेंगे फिजिकली, लेकिन जो एचिंग होगी वो आपकी केमिकल होगी. सो इस तरीके की ये होती है. तो इसके बारे में हम डिटेल में जब RIE पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. अभी इसका एक फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि एच मैकेनिज्म क्या क्या है. तो एच मैकेनिज्म आपके दो टाइप के होते हैं, फिजिकल होता है, केमिकल होता है, एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू दैट. और नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट as far as any process is being concerned, that is your plasma diagnostics. कि प्लाज्मा को आप कैसे डायग्नोज करते हैं. तो जो प्लाज्मा है वो आपका एमिट करता है रेडिएशंस. ठीक है, प्लाज्मा आपका रेडिएशंस करता है और रेंज उसकी रहती है अल्ट्रा वायलेट, सॉरी आई एम राइटिंग इट, इंफ्रारेड टू अल्ट्रा वायलेट. इस रेंज में वो एमिट करता है. तो जो सिंपल टेक्निक है, व्हाट वी कैन से सिंपल एनालिटिकल टेक्निक किस चीज की, इसको मेजर करने की. सिंपल एनालिटिकल टेक्निक टू measure what the intensity of these emissions. Versus wavelength. वो है ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इस टेक्निक से आप इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं एमिशन की विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ. ये दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. और इसमें क्या करते हैं बेसिकली, हम जो आपकी स्पेक्ट्रल पीक्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं. तो इससे आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑब्जर्व टू डिटरमाइन
आप डिटरमाइन कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल एंड आयनिक species by correlating these emissions. तो जिन बच्चों ने थोड़ी सी केमिस्ट्री अच्छी पढ़ी होगी, दे कैन इजीली नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. बाकी आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज जस्ट that how plasma diagnostics is being done. So it is being done by using optical emission spectroscopy. So spectral peaks are involved. और उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये जो हो रहा है इसमें न्यूट्रल क्या है, आयनिक स्पीसीज क्या है, एमिशंस को आप देख के आप ये सब बता सकते हैं. और इसकी बेसिस पे आप और भी काम कर सकते हैं. आप रिलेटिव कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं. रिलेटिव कंसंट्रेशंस की, उसमें कितनी कंसंट्रेशंस किस की है, न्यूट्रल की कितनी है और आयंस की कितनी है. और चेंज इन इंटेंसिटी भी पता कर सकते हैं आप, इंटेंसिटी में कितना चेंज हो रहा है. आपको पता ही होगा कि कैसे पता लगा है कि सन हाइड्रोजन का है. तो उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू देखा था कि जो वेवलेंथ आ रही है हाइड्रोजन की और वो सेम ही होती है, तो उसकी बेसिस पे उन्होंने किया था. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये है आपका प्लाज्मा डायग्नोस्टिक्स. प्लाज्मा डायग्नोस्टिक्स क्या है बेसिकली, कि आप पता करें कि जो मेजरमेंट इंटेंसिटी कितनी है, वेवलेंथ क्या है, उसके बेसिस पे प्लाज्मा को एक्चुअली डायग्नोस कर सकें प्लाज्मा में है क्या. प्लाज्मा क्योंकि जनरेट हो रहा है, यू कैन नॉट मॉनिटर इट रेगुलरली, आपको इनडायरेक्टली मेथड से ही पता करना पड़ेगा. तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड, ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, नाउ नेक्स्ट पोर्शन, कि आपका ये प्लाज्मा भी आपने डायग्नोज कर लिया और आपने एच मैकेनिज्म भी पढ़ लिया. अब एंड पॉइंट कंट्रोल, जब आपका एक बार कंप्लीट हो गया तो आप क्या करने जा रहे हैं, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. तो ड्राई एचिंग और वेट एचिंग में क्या डिफरेंस है, कि जो ड्राई एचिंग है उसमें जो आपकी जो सेलेक्टिविटी है किसके लिए, अंडरलाइंग लेयर के लिए. सेलेक्टिविटी फॉर अंडरलाइंग लेयर इज किसमें, ड्राई एचिंग में. तो अगर हम बात करें कि जब आप एक बार प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो क्या इंडिकेटर है आपके पास कि जिससे आप मॉनिटर कर सकें कि आपको एचिंग प्रोसेस टर्मिनेट करनी है, एचिंग प्रोसेस टू बी टर्मिनेटेड. ठीक है जी. तो आपके उस क्या है, या इसको अगर हम बात करें तो इसको ये भी कह सकते हैं कि एंड पॉइंट डिटेक्शन सिस्टम. एंड पॉइंट डिटेक्शन सिस्टम क्या है, तो जो प्रोसेस है वो होती है लेजर इंटरफेरोमेट्री. ये एक प्रोसेस होती है. अब इसमें क्या होता है उसको अब हम डिस्कस करते हैं. तो ये क्या करता है, ये वेफर सरफेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है. वेफर सरफेस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है ये वेफर सरफेस को, कि जो आपका एच रेट है उसका क्या चल रहा है और उसका एंड पॉइंट कब करना है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको इतनी एचिंग करनी है. तो होता क्या है कि जब आपकी एचिंग होती है तो जो आपकी जो लेजर लाइट है रिफ्लेक्ट होती है. लेजर लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ ए थिन फिल्म
एंड इट ऑसिलेट्स, वो ऑसिलेट्स करती है। तो होता क्या है कि जब ये आपकी लेजर लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, तो थिन फिल्म सरफेस जो है ऑसिलेट कर रही है। तो जो ऑसिलेशन है आपकी जो सरफेस की वजह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि फेस इंटरफेरेंस हो रही है आपकी, फेस इंटरफेरेंस किसके बीच में? जो आपकी लाइट है आउटर सरफेस पे हो रही है और इनर सरफेस पे हो रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसकी वजह से इनमें जो फेस इंटरफेरेंस हो रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लेयर है ये आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें किस चीज़ को, कि आपका कितना एचिंग हो रहा है। तो जो ऑसिलेशन हो रहा है, पीरियोडिक ऑसिलेशन, उसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी एचिंग हुई है यूजिंग दिस फॉर्मूला 2n बार। इसमें डेल्टा डी जो है वो क्या है? वो थिकनेस है। किस चीज़ की थिकनेस है जी? वो आपकी फिल्म की थिकनेस है जो कि एच हो रही है। ठीक है। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है जो हमने लेजर लाइट यूज करी है उसकी। ठीक है। और जो एन बार है दैट इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस चीज का? लेयर बीइंग एच्ड। ठीक है। तो अभी इन्होंने बताया कि जैसे पॉलीसिलिकॉन है, उसको अगर हम 80 नैनोमीटर डेल्टा डी है, तो जो वेवलेंथ होती है वो हीलियम नियॉन लेज़र यूज़ करते हैं, हीलियम नियॉन। तो जो वेवलेंथ है वो आती है आपकी 632.8 नैनोमीटर के लगभग। तो इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग मेथड है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्लास फॉर योर ड्राई एचिंग। अब नेक्स्ट क्लास जब आपकी मंडे को होगी, in that class we will start with new topic. In this one point to be noted, that is to be done by you, that is reactive plasma etching techniques and equipment. ये आप खुद करेंगे और ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 का पोर्शन है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, नोट डाउन, ये आपने खुद करना है। दैट इज रिएक्टिव प्लाज्मा एचिंग टेक्निक्स। इसमें एक कर लीजिएगा आप RIE डिटेल में। ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाएगा रिएक्टिव आयन एचिंग में, कि कैसे कैसे आप किस किस मेथड से करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।